اچھا یہ ہمارے لیے ہے. اور نبی کی ابتدا کیا ہے؟ معجزہ. بولیے ذرا سبحان اللہ. نبی کی پہچان معجزہ ہے، نبی کی ابتدا معجزہ ہے. ہم نے پہچاننا ہے معجزے سے، نبی نے ابتدا کرنی ہے معجزے سے. ہم نے احکام ماننے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، ہم نے رب کو ماننا ہے، ہم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے. بھائی ہم نے پہچانیں گے کیسے کہ یہ نبی ہے؟ تو ہم کہیں گے معجزہ دکھاؤ. نبی کی ابتدا معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو سن لیا معجزہ ہے. معجزہ کی مثال دے کے ایسے سمجھا دوں آپ کو کہ وہاں اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ گاڑی جو ہے وہ بالکل پھس جائے، چکنا چور ہو جائے، اور جو بندے بیچ میں نکلے وہ صحیح سلامت نکلے. تو آپ کیا کہیں گے؟ حیرانگی والی گل ہے یار، یہ تو معجزہ ہی ہو گیا. بندے بچ گئے، گڈی ساری پھس گئی. معاذ اللہ استغفر اللہ. کسی دے اتنے چھت ڈگ پیندی ہے، اتنے بڑے کڑیل پہلوان ستے ہوئے وہ سارے لقمہ اجل بن گئے، مر گئے، اور 3-4 دن کا بچہ زندہ رہا. آپ کہیں گے واہ کیا بات ہے بھائی، حیرانگی والی گل ہے، بچہ بچ گیا اور یہ مر گیا. یہ معجزہ ہو گیا. معجزہ کہتے ہیں جو فطرت کے خلاف ہو جائے، جو نہ ہونے والا کام ہو جائے فطرت کے خلاف، وہ اس کو جو عقل میں نہ آئے، جس کو عقل کے پیمانے سے نہ دیکھا جائے، جو بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے نکتہ داں، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے سائنس داں، ان کی عقلیں اس کے آگے گھٹنے ٹیک جائے، پھر کہیں گے یہ معجزہ ہے. جب عقلیں ختم ہو جائیں وہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. نبی کا کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے. اب نکتہ یہ میں سمجھانے لگا ہوں کہ نبی کی ابتدا معجزہ ہے تو پہچان معجزہ ہے. اب نبی نے دکھانا ہے معجزہ. وہاں جا کر ہر بندہ نہیں، بہت بڑے بڑے نکتہ داں فلسفی، بڑے بڑے سائنس داں، ان کی عقلیں جو ہے وہ گھٹنے ٹیک جاتی ہے. میں کہتا ہوں جہاں جا کے انسانی عقلیں ختم ہو جاتی ہے، نبی کے معجزے کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. جہاں تمہاری عقلیں ختم ہو جائیں، جہاں جا کر تمہاری عقلیں ختم ہو جائیں، جہاں تک تمہاری عقل ختم ہوتی ہے، سوچ ختم ہوتی ہے، تمہاری عقلیں گھٹنے ٹیک جاتی ہے، وہاں سے نبی کی ابتدا ہے. انسانی عقل کی جہاں انتہا ہے، نبی کے معجزے کی ابتدا ہے. میں کہتا ہوں کیا بات ہے ان کی جو نبی کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں. میں نے کہا ادھر تو سوچ کہ عقلوں کی جہاں انتہا ہے، نبی کی تو وہاں سے ابتدا ہے. اور عقل کیڑی ہے دسا جا. یہ عقل وہ ہے کہ اتنی ناقص عقل ہے، اس کے سمجھانے کے لیے رب نے خوب کان کھینچے کہ بکری کا بچہ ہو نا چھوٹا سا 2-4 دن کا، دیہاتی جلدی سمجھیں گے. سمجھ آ رہی نا میں آخری بھائی؟ تو انہوں پتہ کی کرنا، تسی گوشت کھلا کے ویکھنا، وہ نہیں کھائے گا. نصیر صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو آپ گوشت کھلائیں گے، وہ گوشت نہیں کھائے گا. اور شیر کے بچے کو، چھوٹے سے کو گھاس کھلائیں گے، وہ گھاس نہیں کھائے گا. اب 2-4 دن کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ، انسان کا بچہ، اس کے آگے آپ نجس چیز، پلید چیز، گند چیز، آگ، جو چیز بھی نقصان دہ ہے، نہیں کھانے والی، اس کو رکھیں گے، وہ اٹھا کے منہ میں ڈال لے گا. نہیں بھائی سمجھ آ رہی بھائی؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ شیر کے بچے کو گھاس کھلائیں گے، وہ گھاس نہیں کھائے گا. بکری کے بچے کو گوشت کھلائیں گے، وہ گوشت نہیں کھائے گا. تمہارا وہ بچہ ہے جو کچھ آئے اٹھا کے منہ میں ڈال لے گا. جس کو تم ناقص سمجھتے ہو ڈنگر، بہت ذرا سبحان اللہ. میں عقل والوں کو ذرا تماچا مارنے لگا ہوں. میں نے کہا تمہاری یہ عقل ہے کہ گند بھی اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہو. جہاں جس کو ناقص عقل جانور ڈنگر سمجھتے ہو، اس کے تو نامولود بچے کو بھی پتہ ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا.
हालांकि कानून क्या है कि सर्दी से चीज़ सुंगड़ती है, हरारत से फैलती है। जो नसीब साहब आप बाहर जाते हैं मोटरवे कोल बड़े बड़े आते रावी के किनारे के भी कोल आते, जगह जगह सगियां कोल भी आगा, रावी कोल भी आगा, बाबा साहब कोल। गल सुनो, थोड़े थोड़े वक्फे से इतने इतने गैप आते देखे जी, इतने इतने गैप है क्यों है कि जब हरारत से फैलेगा तो ये गैप होगा तो ये बढ़ जाएगा। अगर बीच में पुल के गैप ना रखेंगे तो वो फट जाएगा। वो पुल के दरमियान बड़ी इमारतों में मैंने इस्लामाबाद भी देखा, मैंने सरीना होटल में देखा कि थोड़े थोड़े वक्फे बाद ना उसके अंदर चलते चलते जाए, किनारों के अंदर है ना जी, तो वो गैप उन्होंने बनाए हुए हैं कि ये जो वो जब हरारत से चीज़ फैलेगी तो फिर ये फटेगी नहीं, इसको गैप मिलना चाहिए। और सर्दी से क्या होता है, चीज़ें सुंगड़ती है, हरारत से गर्मी से फैलती है। ऐसा ही है, आप देखिए, आप अपने घर में आजमाएं, ये जो पानी है ना, पानी ये हरारत से तो वो गर्म होता है ना, तो सर्दी से सुंगड़ना चाहिए, ये सर्दी से सुंगड़ने की बजाय फैलता है। आप देखा होगा कि कोले में पानी डालते हैं तो इससे ज़्यादा तो कोई भी माना पूरा नहीं है ना, भी पानी डाल नहीं उतरा कि जितना उसके अंदर आए, बिल्कुल साइज पूरा होता है ना। जब बर्फ जमती है तो फंस जाती है, ये पानी फैलता है, जम के क्या करता है, पानी फैलता है। और इसमें फैलने की और दूसरे नंबर इसमें ये है कि ये जो पानी जब जमना शुरू हो जाए 10-15 मिनट बाद फ्रिज में वेख लेना तुसी, ठूंगा मार के पहले ऊपर सिकरी आती है। क्या आती है, बोले भाई मेरे साथ साथ है, मैंने ये बात समझानी है आपको कि ये ऊपर क्या होती है, सिकरी आती है, फिर थोड़ी मोटी होती है, फिर थोड़ी मोटी होती है, ठूंगा मार के देखना थल्ले पानी होता ही होएगा। पानी क्या होता है, जमना शुरू होता है ऊपर से, और ये फिर फैलता है ऊपर से, ये नहीं होता कि ठोस होता है। अगर पानी सुंगड़ता तो ये बर्फ पानी में डालने से तरती ना नीचे चले जाती, डूब जाती, ठोस नहीं हुई, फैली है, बल्कि ये होली हुई है। और ये पानी का जमने की जो ताकत है ये नीचे से नहीं ऊपर से होती है, पानी ऊपर जमना शुरू होता है। अब किताबों में लिखा कि ये अल्लाह ताला ने कुरान कुदरत बदला क्यों है, फरमाया कि ऐसे इलाके हैं जहाँ सर्दी पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है कि उन इलाकों में जो तालाब है, जो दरिया है, जो जनाब अली वो होते हैं ना दरिया, वो जहाँ जहाँ पानी वहाँ बर्फ जम जाती है। क्या होता है, बर्फ जमती है, फुट फुट बर्फ पानी के विच जम जाती है। अगर ये सुंगड़ना शुरू होती, ऐसे पानी फैलता ना, सुंगड़ता 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 करीब हो जाता, या नीचे से जमना शुरू होता, तो फिर क्या होता, मछली ऊपर आती, फिर ऊपर आता, फिर ऊपर आता, फिर ऊपर आता, फिर ऊपर आता, तो फिर कहाँ जाती, पानी के कीड़े मकोड़े मछलियाँ कहाँ जाती, मछलियाँ ऊपर आती आती ऊपर बर्फ जम गई। फिर मज़े की बात है कि ये हरारत को, सर्दी को, ठंडक को गुजरने नहीं देता। इसको क्या कहते हैं आप उर्दू इंग्लिश में, कि जहाँ से वो करंट गुजरता है, ये जो चीज़ गुजरती है, जैसे ये लकड़ी है, इसमें वो नहीं है कि ये गुजर जाए, ये गुजरने नहीं देगा करंट। पानी जो है, इसकी बर्फ है, ये जमगीत है, ये नीचे अब ठंडक नहीं गुजरने देगी, नीचे उसी तरह पानी होगा। अगर पानी नीचे से जमना शुरू होता और सुंगड़ना शुरू होता, बताओ मछलियाँ कहाँ जाती, पानी के कीड़े मकोड़े कहाँ जाते। अब पानी की जो वो, हालांकि ये फितरत के खिलाफ ही है, फितरत के खिलाफ ही है, हरारत से चीज़ सुंगड़ती है, लोहा भी सुंगड़ता है, लेकिन पानी फैलता है, फिर जमने की जो कुव्वत है वो ऊपर से नीचे से नहीं है। हालांकि फितरत के ये सारा कुछ खिलाफ है, लेकिन जब पानी ऊपर से जमा, 1 फुट भी बर्फ जम गई, मछलियाँ कहाँ नीचे है, फिर पानी सर्दी भी नीचे नहीं जाने दे रही, बर्फ उसको हरारत को भी रोक रखा है, वो नीचे जिंदा कर रही है, नीचे खा पी रही है, अपने टहल रही है, अपने घरों में फिर रही है। अगर नीचे से ऊपर को बर्फ जमना शुरू होती, वो कहाँ जाती, और पानी सुंगड़ना शुरू होता, वो कहाँ जाती, मर जाती। मैं कहता हूँ जिस खुदा ने मच्छियों की जिंदगी बचाने के लिए, पानी के लिए, मच्छियों के लिए कानून कुदरत बदल कर पानी की जमने की कुव्वत ऊपर से नीचे को दी, नीचे से ऊपर को नहीं दी, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े और मच्छियों की जिंदगी
आ गई है। ये है करामत, समझ में आए या ना आए, लेकिन मौजज़ा और करामत वो होती है। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने चांद 2 टोटे किया तो कहते हैं जी वो सितारे कहाँ गए थे, फलसफी बैठे हुए हैं, सूरज को मोड़ा, फिर दूसरी चीज़ों को जो आपने खड़ी हैं वो कहाँ जाएंगी। भाई जिस रब ने पानी में मच्छियों को बचाने के लिए उन्होंने कुदरत बदल दिया है, हो सकता है उन चीज़ों को भी फ्रीज कर दिया हो, साइड पे कर दिया हो, तो आप इन चीज़ों पर पढ़ेंगे कि अंबिया के मोज़े कैसे हुए, अब जनाब अली ये फिर वो उन्होंने कलमा कैसे नहीं पढ़ा। भाई देखें, जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा किया तो क्या हम लोगों ने नहीं देखा था ना? क्या ये छोटा मुआज़ा है, बड़ा मुआज़ा है? मट्टी का परिंदा बना के फूंक मार के उनके सामने उड़ा दिया, ये छोटा मुआज़ा है? क्या छोटा मुआज़ा है? तो बताएं, उन्होंने सारों ने कलमा पढ़ लिया, फिर मेरे नबी का मुआज़ा क़यामत तक के लिए भी है। आपको पता है ना, बड़ा मुआज़ा कुरान कहते हैं ना, सारे मुआज़े हालांकि बहुत बड़े मुआज़े हैं, लेकिन कुरान को सबसे बड़ा मुआज़ा उलमा ने लिखा है कि सबसे बड़ा मुआज़ा कुरान है। क्यों? कि दौरे नबूवत हजूर का चलना क़यामत तक, हजूर का कोई ऐसा मुआज़ा हो कि काफिर को मनवाना पड़े। तो उन्होंने चांद उगता नहीं देखा, उन्होंने दरख्त को चलकर सरकार के पास आते हुए नहीं देखा, सूरज को पलटते हुए नहीं देखा। जैसे आपने जनाब ईसा को देखा है मुर्दे जिंदा करते, ये किसी बंदे का नंबर होगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? अच्छा नहीं, जनाब मूसा ने तो डंडा मार के पानी पर वो चश्मा जारी किया, तो बड़ा बड़ा था नेट से पानी का वो ट्यूबवेल लगा होगा ना, तो जगह का आता पता है तो मुझे भी बताएं, चलते हैं डे आउट के लिए, वहाँ चले जाते नहीं है ना? तो भाई हम मानेंगे कैसे? आप उन नबिया को छोड़ दें, अपने नबी का कोई मुआज़ा वो आपको पता हो कि ये किया था, पत्थर वो जो अबू जहल के हाथ में कहीं किलियाँ बोली थी वो मिल जाए, कहीं पड़ी मुँह पे ये बोली थी, नहीं ना मिलेंगी। अबू जहल भी बड़ा सियाना है ये देख याद रखना, नबी की शान का इनकार, वलैद की शान, जो शान का इनकार करने वाला ना वो मुनाफिक होगा, काफिर नहीं होगा। काफिर इस चीज़ का कायल है, इसीलिए तो वो मुठियों में लेके आया था कि जो नबी होता है वो गैब भी जानता है, जो नबी होता है उसकी हर शय ताबे होती है। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने भी कमाल कर दिया। ये बीच में बात आई है, वैसे मैं आगे लेके जाता हूँ, बता देता हूँ कि वो मुट्ठी लेके आया, कहने लगा कि या रसूल अल्लाह बताए इसमें क्या है। तो हजूर ने देखा कि मैं कह दिया ना पत्थरी है, इसमें किंकरियाँ हैं पत्थर की, तो ये बहाने बनाएगा भागने के लिए, इसको जगह मिलेगी, या कहेगा तूने मुझे उठाते हुए देखा है, या कहेगा कि वैसे 3 तुक्का मारे थे भी पत्थरियाँ ही हो सकती और मुठ में हीरे नहीं करता उठा, तो ये 3 तुक्का लगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने इन सब बातों को साइड पे लगाया, इसको द्वार के साथ लगाने के लिए फरमाया मैं क्या बताऊँ, ये जो मुट्ठी में वो ही बता दे मैं क्या हूँ, कि ताकि अबू जहल को भागने की जगह ना मिले, लेकर भाग गया। क्या बात कह के गया, माज़अल्लाह हजूर की बात में गुस्ताखी करके गया, कहने लगा ये बहुत बड़ा जादूगर है, यही बात की। लेकिन ये बात उनका कहना भी, उनके जो अकलें हैं, उनकी जो पावर है, उनकी जो सियासतदानी है वो घुटने टेक गई हजूर के सामने, ये हजूर की पावर वो भी मान गए। समझ आ रही